Good morning. We are about to begin our next session, which is titled As the Last Mile. The speakers for this session would be Amarjeet Sinha ji. He will be in conversation with R. Parshuram ji and Ved Arya ji. The Last Mile explores the gap between the drafted policies, their implementation, and the challenges which often make public services inaccessible to the poorest and the most vulnerable sections of the society. It provides us the in-depth overview of the dynamics between communities, research and consultation, and the implementation of policies for development. Let's welcome Mr. Amarjeet Sinha. He is currently a member of the Public Enterprises Selection Board, India. He was earlier posted as an advisor to the Prime Minister of India till 31st July 2021. As a retired IAS officer, he has over 40 years of experience working in government, largely in the rural and social sectors. He has had the unique distinction of having played a major role in designing the Sarva Shiksha Abhiyan, India's main program for universal elementary education. That deserves a huge round of applause. He has also been a part in bringing about governance reforms in the programs of rural areas covering livelihood, employment, housing, social security, skills, urban development, and road construction. We are honored to have you with us, sir. In conversation with him, we have our first discussant, R. Parshuram ji. He is an independent professional working as a public policy and rural development consultant. He has been a part of public systems management for more than 4 decades of experience. His leadership skills in designing and managing change in government institutions and programs. He holds experience in working with civil society organizations and other non-government stakeholders in the delivery of programs and services, especially in the rural areas. Welcome, sir. Joining them, we have our second discussant for this session, Ved Arya ji. He is a graduate of IIT Kanpur 1979 and IIM Ahmedabad 1981. After spending a couple of years with TCS, he decided to give up his corporate career and devote his life in improving the life of people at the very bottom of the socio-economic ladder. In 1997, he started an NGO, Srijan, which stands for Self-Reliant Initiatives Through Joint Action, with the aim of elevating poverty in villages. The programs that Srijan has implemented include Bundelkhand Initiative for Water, Agriculture, Livelihood. Srijan has branches in 6 states and has impacted 1,25,000 rural poor families through reviving traditional water bodies, nano orchards, horticulture, and marketing of milk, custard apple, and pomegranate. I would like to request the gentleman to please unfold the conversation. Thank you. Thank you very much. We must always respect the audience. And the preponderance here is of young minds. So I think, Amarjeet, your task is cut out today. You're not going to speak to 40-somethings and 50-somethings and 60-somethings and almost 70-somethings like me. you have to really address the issue here. We'll, of course, ask Mr. Sinha
to first tell us about his book, and Mr. Arya will also have something to say about that. But I think we will try, I mean, with Amarjit's consent, try to make the discussion as much as interactive as possible, respecting the young boys and girls and men and women here. First of all, the book itself, and now it's actually, I'm not exaggerating if I say that this is almost a magnum opus. I wouldn't dare say on public policy, as and it encaptures all that has been happening up till now, and what kind of things haven't happened which would have made it better. For younger people, the point is that if you as citizens want to see an India of your vision folding in front of your eyes during your lifetime, so what more needs to be done for that? So on that, to start with, I'll request Mr. Sinha to let us know about the book and about the central theme and the purpose of his writing this book. Mr. Sinha. धन्यवाद सर। नौजवान साथी, बच्चे बच्चियां, आज आपकी बात करेंगे इस किताब के माध्यम से, लेकिन आपकी बात करेंगे। आज हम 2024 के जनवरी में 1986-87 में देश में एक सर्वेक्षण हुआ था जिसको हम 42nd राउंड नेशनल सैंपल सर्वे बोलते हैं। उस सर्वेक्षण में ये बताया गया था, आज हमारे सामने लड़कियां बैठी हैं, लगभग बराबर की संख्या में हैं। 86-87 के 42nd राउंड नेशनल सैंपल सर्वे ने बताया था कि उस समय हिंदुस्तान में 6 साल से ज़्यादा की जितनी भी महिलाएं बच्चियां थीं, 6 से लेकर के 60-70 साल तक के, उनमें से 2/3 ऐसी थीं जिन्होंने स्कूल देखा ही नहीं था ग्रामीण भारत में। आप शायद आज इसको विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वही स्थिति थी कि 69.23% females 6+ had never enrolled in a primary school in rural India. ये 86-87 की बात कर रहा हूँ मैं, 47 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आज़ादी के काफ़ी दिन बाद तक भी जो ध्यान होना चाहिए शिक्षा पे, वो नहीं था। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? हम अगर जब बात करते हैं आर्थिक विकास की, जापान की, चीन की, साउथ कोरिया की, हम सब देखना चाहते हैं खाली अरे वहाँ तो उद्योग हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अगर मानव पूंजी न हो, ह्यूमन कैपिटल न हो, तो कुछ नहीं होगा। जो बालिकाएं, लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आपसे एक बहुत सरल सा आंकड़ा शेयर करूंगा और उससे आप समझ जाएंगी कि लड़कियों की शिक्षा कितना मायने रखता है। पूरी दुनिया में आर्थिक प्रगति के गति को आप देखें, रफ्तार को देखें, आप ज़्यादा नहीं 4 देशों का अध्ययन करें कि उन देशों में बालिकाओं की 100% प्राथमिक शिक्षा, 100% बालिकाएं जहां प्राइमरी एजुकेशन में हो, कब उन्होंने हासिल किया। जापान का आप देखेंगे तो जापान ने 20वीं सदी के शुरुआत में ही लगभग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स प्राप्त कर लिया था। चीन, साउथ कोरिया और हिंदुस्तान 1930 के दशक तक 20-30% के लेवल पे था, लगभग एक ही जगह पे था। लेकिन साउथ कोरिया ने उस समय एक्सेलरेटर दबाया लड़कियों की शिक्षा पे, और 1960 की दशक पहुंचते पहुंचते सभी लड़कियां 100% फीमेल प्राइमरी एजुकेशन था। चीन ने वही काम 80 के दशक में किया, और हम हिंदुस्तान में 21वीं सदी के प्रारंभ में लगभग उस स्थिति पे पहुंचे। तो फीमेल प्राइमरी एजुकेशन जो है उसका देखिए, और इन देशों का आप आर्थिक विस्तार देखें, जापान, साउथ कोरिया, चीन, इंडिया, हमसे आगे निकल गए। वो क्यों निकले? क्योंकि लड़कियों की शिक्षा पर हमने ध्यान नहीं दिया।
हमारी किताब आखिरी मील ऐसे ही दस्तावेजों को एक साथ रखने का प्रयास करती है। वेद जैसे, परशुराम जी जैसे लोगों के कार्यों से सीखने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसे कौन सी चीज़ हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। आज विश्व में कोविड के बाद से हिंदुस्तान के आर्थिक विकास की गति सबसे तेज देशों में हिंदुस्तान की गिनती होती है। एक और तो हमारे वो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं कि हमारा ग्रोथ अच्छा है, हमारी डेट मैनेजेबल है, डोमेस्टिक डेट ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं। 90-91 से ही हमारे, जब से रिफॉर्म्स का दौर चला, एवरेज ग्रोथ 7% का होता रहा है। हम आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये मैक्रो इंडिकेटर्स जो बहुत ही अच्छे हैं, उसको अगर आप माइक्रो रियलिटी से या माइक्रो हाउस होल्ड के स्तर पे घर की स्थिति से आप कर देखेंगे तो अब आप पाएंगे कि अभी भी कमियां बहुत हैं। जो उदाहरण आपको मैंने अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से दिया, जापान, साउथ कोरिया, चीन और हिंदुस्तान का, वही अगर आप हिंदुस्तान में देखेंगे तो आखिर क्या कारण है जब बहुआयामी गरीबी, जिसका अभी हाल में ही आपने देखा होगा, हिंदुस्तान में 2015-16 से लेकर के 2019-21 के बीच में एक सर्वे है जिसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बोलते हैं। उससे पहले 2005-6 में सर्वे हुआ था। इस अवधि में 5-6 से लेकर के 2023 का जो अवधि था, इस अवधि में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट आई ह्यूमन डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 41 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी के बाहर आए हैं। ये बात सही है कि गरीबी कम होने की गति तेज हुई, लेकिन यहाँ भी हम क्या पाते हैं, जो बताइए हिंदुस्तान में सबसे कम बहुआयामी गरीब राज्य कौन सा है? कौन सबसे कम? नो, गरीबी जहां सबसे कम हो, केरला। किसने बोला? हाथ उठाइए, इनके लिए ताली बजा दीजिए भाई। बहुआयामी गरीबी में सबसे कम 0.55%। नीति आयोग के 2023 के रिपोर्ट से 0.55% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी केरल में है। जब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करते हैं तो शिक्षा की भी करते हैं, इनकम की भी करते हैं, स्वास्थ्य की भी करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की भी करते हैं, रहने की व्यवस्था की भी करते हैं, पक्का घर है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, सड़क है कि नहीं, इत्यादि। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में तो केरल सबसे बेहतर है हिंदुस्तान में, लेकिन पर कैपिटा इनकम देखिएगा, औसत आम अगर घर का आय देखेंगे तो 11वीं स्थान पे। वो आगे क्यों है? क्योंकि महिला साक्षरता केरल में 95% से ज्यादा है। इसी तरह से जब राज्यों की आप तुलना करेंगे, तमिलनाडु, दक्षिण भारत में आप देखेंगे, दक्षिण भारत के राज्यों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम है। तमिलनाडु में 2.2% ही लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से, जो यूएनडीपी के आंकड़ों से भी लगभग मेल खाता है। तो आपने देखा, अगर आप ऐसे राज्यों की भी तुलना करें जहां की पर कैपिटा इनकम बराबर है, कर्नाटक है, गुजरात है, तमिलनाडु है, आबादी बराबर है, पर कैपिटा इनकम बराबर है करीब 2.5 लाख का, आबादी 8 से 9 करोड़ का, लेकिन जब आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में देखेंगे तो फर्क है। और फर्क का एक ही कारण है, जो बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, जिन राज्यों में सभी बेटियां स्कूल नहीं जाती हैं वो पीछे पड़ते हैं। पंजाब और हरियाणा अगल बगल में है। हरियाणा की औसत पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है पंजाब से, लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पंजाब का कम है, हरियाणा का ज़्यादा है। ये खाप पंचायत से शिक्षा को रोक करके बालिकाओं के लिए कभी कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं इस किताब में आखिरी मील
किताब का नाम ये अंग्रेजी में भी है, हिंदी में है। आप जो पढ़ना चाहें बिना 1 रुपए खर्च के आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। और मैं इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं पढ़ने के लिए कि आगे भविष्य में अगर हमें हिंदुस्तान को एक विकसित भारत बनाना है तो बिना ह्यूमन कैपिटल के नहीं होगा, बिना एक समावेशी समाज के नहीं होगा, बिना एक सबकी प्रगति साथ साथ हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो गरीब से गरीब परिवार है उसकी स्थिति में परिवर्तन हो। इस पुस्तक में ये कोशिश की गई है कि जो भी कारण है गरीबी के, जो कोई सरकारों द्वारा विशेष काम किए गए हैं, कई के अच्छे परिणाम भी आए हैं, कई के उतने सफल परिणाम नहीं आए हैं, यह पाया गया कि परिणाम सफल तब नहीं होता है जब आखिरी मील धुंधला होता है। आखिर इस परिवार की समस्या कुछ ऐसी है जिसके अध्ययन और समझ के बिना हम अगर कार्यक्रम चलाएंगे वो कार्यक्रम वहां तक नहीं पहुंचता। इसीलिए जो गीता की बात सवेरे हो रही थी उससे जोड़ते हुए अगर आपने तय किया है कि कुछ करना है तो अंतिम मील सही हो, आखिरी मील सही हो। आप ये सोच लें कि मैंने बोल दिया और हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। वो होता तभी है जब उसे किया जाता है, ये समझ करके कि समस्या क्या है। मैं यहीं पर विराम दूंगा। धन्यवाद। अमरजीत, आप अच्छे लेखक हैं, साथ में अच्छे शिक्षक हैं। ये अभी का एविडेंस सामने आपकी तालियों से गूंजता हुआ ये हाल आपको ये देता है। आपकी किताब को लिखने के लिए और यहाँ तक सबको बताने के लिए इसमें क्या लिखा है, आपको बहुत बहुत दोबारा कॉम्प्लीमेंट्स मैं देता हूँ। तो जो गीता की बात को मैं भी आगे बढ़ाते हुए, केवल ज्ञान काफ़ी नहीं है, कर्म भी जरूरी है, केवल कृष्ण काफ़ी नहीं है, अर्जुन भी जरूरी है। तो आप लोग क्या करना चाहेंगे अपने जीवन में? ज्ञान वाला रास्ता अपनाना चाहेंगे, कर्म वाला अपनाना चाहेंगे, ये आपके सबके ऊपर है। तो जिस दहलीज पर आप खड़े हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक दहलीज है। और अभी जो जैसे भी आपने जो सवाल किए, क्विज़ किए, उसमें आपका जो ज्ञान है, मुझे उतना सब ज्ञान नहीं था कि केरल इतना बढ़िया प्रदेश है, और खाप पंचायत के बारे में भी आपको मालूम है। इसके लिए हमारे लोकतंत्र को मैं बधाई देना चाहता हूँ, आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। अमरजीत के 40 साल के जीवन में इन्होंने जो ऊंचाइयां पाई, प्रधानमंत्री कार्यालय तक इन्होंने अपने को पहुंचाया, और किस किस जगह इन्होंने काम किया पूरे देश में, सारे राज्यों में तो घूमा, सारे के सारे करीब करीब सभी जिले अमरजीत देख चुके हैं, जो आपको ये जिस्ट जो प्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने अपनी किताब में 23वें चैप्टर में पॉवर्टी फ्री इंडिया की कल्पना की है, गरीबी मुक्त भारत की कल्पना की है। आगे का भविष्य क्या होगा वो आपका भविष्य है। 2047 में आप कितने साल के होंगे? 40 साल के होंगे, 45 साल के होंगे। उसकी कल्पना भी अमरजीत कर चुके हैं। उसके बारे में आपसे एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कि जिसमें ये एक फीमेल लिटरेसी की बात कही, और भी कई सारे इंडिकेटर में भारत का स्थान पूरे विश्व में कितना है? वो 100 से भी कम है। किसी ने कहा 131 है, अभी रिसेंट है। तो ये कहते हैं कि 2024 तक 100 के अंदर आना चाहिए, और 2047 तक हम विकसित भारत यदि देखना चाहते तो 50 टॉप 50 में होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा, ये किताब में वो लिखते हैं। देश की संख्या में आज 1.4, हमारा कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़ से ज़्यादा। तो सभी का विकास सबके साथ हो, इसमें एक पब्लिक पॉलिसी, चूंकि अमरजीत पब्लिक पॉलिसी में रहे हैं, राज्यों अपने देश की पॉलिसी बनाते हैं, इसमें एक बात आप सब सुनते हैं कि सब गरीबों को अन्न मुफ्त, सबको गैस सिलेंडर, उसके साथ गैस भी कितने का सिलेंडर? कितने का? 400 का, 450 का,
500 का, अब इसी में हो गई है पॉलिटिकल लड़ाई। तो इस तरह की और सारी चीज़ें भी प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह कर करके एक एस्टिमेट ये बोलता है हर साल 5 लाख करोड़ राज्य के कोष से इस सब में जाता है, प्लस माइनस कुछ होगा। ये जो देश की अब कहते हैं डेमोक्रेसी में वोटर्स का भी सपोर्ट चाहिए, तो ये सब भी करना चाहिए। अमरजीत सिंह से ये मेरा एक सवाल है, ये जो फ्री बीज की पॉलिसी, आपको हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? रेवड़ी कल्चर। ये बात अच्छी है। चलिए चलिए, रेवड़ी कल्चर कितनी सही है या कितनी गलत है, इसके बारे में कुछ समय आप बताएं हमारे भविष्य के भारतीयों को। देखिए, अगर नियत समावेशी विकास का है तो जैसा मैंने प्रारंभ में बताया, समावेशी विकास बिना शिक्षा के, बिना मानव विकास के तो संभव नहीं है। तो पहला तो इसका निष्कर्ष यही है कि मानव विकास पर हमें फोकस करना पड़ेगा और भी राशि लगानी पड़ेगी, ताकि हर बच्चे को या बच्ची को उसकी जो क्षमता है उसका संपूर्ण मानव विकास करने का एक अवसर मिले। हर बच्चे में एक क्षमता होता है। टू बी एबल टू मैक्सिमाइज दैट पोटेंशियल इन एवरी ह्यूमन बीइंग थ्रू कैपेबिलिटीज, सबसे बड़ी तो चुनौती यही है। आर्थिक विज्ञान के जो इकोनॉमिक साइंसेस के लोग हुआ करते थे, उनकी बहस होती थी। एक कोई बोलते थे कि नहीं, ग्रोथ हो जाएगा तो अपने आप ट्रिकल डाउन से गरीब तक पहुंच जाएगा और सबको स्थिति अच्छी हो जाएगी। फिर अमर्त्य सेन जैसे इकोनॉमिस्ट आए, उनका मानना था कि नहीं, जब तक हम ह्यूमन कैपेबिलिटीज को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ह्यूमन कैपेबिलिटीज से बढ़ता है और सोशल जस्टिस या समवाय भी ह्यूमन डेवलपमेंट से आता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक तीसरी सोच और सामने आई, और जो आपके प्रश्न से जुड़ा है, कि अगर एक गरीब परिवार जिसके बहुत सारे डेफिसिट्स हैं, अभाव है कई चीज़ों का, घर पक्का नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, तो ये जो डेफिसिट्स या अभाव हैं, अभाव के बने रहने से उन परिवारों के बच्चे बच्चियों का विद्यालय में या मानव विकास में आगे बढ़ने में क्षमता कॉम्प्रोमाइज होता है। अगर हम कच्ची झोपड़ी में रहते हैं, बारिश तेज हो गई तो अगले दिन माँ बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाती, बीमारियां ज़्यादा होती हैं, कई चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रो पुअर पब्लिक वेलफेयर, जो न्यूनतम सुविधाएं हर परिवार को सुनिश्चित करे, और उसके बाद फोकस ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो है वो निरंतर हर बच्चे तक बना रहे, तो निश्चित रूप से हमें एक बेहतर आगे का दिन दिखता है। और ये जो बहस, जिसको कई लोग मछली बांटना और मछली पकड़ना सिखाना, आप में से हाथ उठा के बोलें, आप में से कितनों को मछली बांटना पसंद है? हाथ उठाएं। कितनों को मछली पकड़ना सिखाना पसंद है? हाथ उठाएं। मछली पकड़ना सिखाने का मतलब है कि बच्चे में ये एक क्षमता आई कि वो खुद से अपनी रोजगार की व्यवस्था कर लेंगे, क्योंकि वो उनके पास कौशल है, शिक्षा है, उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी है कि वो कर पाएंगे और खुद से अपने जीवन को चला पाएंगे। लोकतंत्र में जहाँ पे हर व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण होता है, एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होता है, दलगत राजनीति है, हर राज्य में होता है कि अच्छा, आप अगर 4 रुपए दोगे तो हम 6 रुपए देंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब के बीच में एक्सेप्टिंग अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, मानव विकास का नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा अंतिम गोल है कि हम 2047 तक पहुंचना चाहते हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं, ह्यूमन कैपिटल इज द की टू इट। पूरे दुनिया में हम उदाहरण देते हैं ईस्ट एशिया का, चीन का, जापान का, थाईलैंड का, साउथ कोरिया का, इंडोनेशिया का, पूरे जो ईस्ट एशिया की सफलता है वो ह्यूमन कैपिटल पर ही आधारित है। एक प्रोएक्टिव स्टेट और ह्यूमन कैपिटल, यही 2 फैक्टर हैं जिससे फर्क पड़ता है। तो अपने देश में भी आप देख लें,
क्या कारण है कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्री किसी को लगाना होता है, उसी तेलंगाना, उसी तमिलनाडु, उसी गुजरात, उसी दिल्ली, इन्हीं महाराष्ट्र, इसके बाहर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतना क्यों नहीं होता है? अन्य अभावों के साथ साथ एक अभाव ह्यूमन कैपिटल का होता है। अगर मानव क्षमताएं नहीं होंगी उस क्षेत्र में पर्याप्त, उस उद्योग के लिए, तो स्वाभाविक है कि ये अनइक्वल डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहेगी। जैसा कि पहले मैंने कहा था, इस किताब में बहुत कुछ लिखा है। आज सुबह शुरुआत ही भगवद गीता पर चर्चा से शुरू हुई, जो कि महाभारत में जिसको अंगीकार किया गया है। और महाभारत के बारे में ये कहा गया है कि दुनिया में जो कुछ जानने लायक है वो इसमें है, और जो यहाँ नहीं है वो जानने लायक शायद है भी नहीं। तो अमरजीत की किताब भी इसी तरह की है कि उसमें कोई पहलू या आयाम नहीं छोड़ा गया है जिन पर उनका ध्यान नहीं गया हो। लेकिन इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, और एक बात और जो आपने केरल की कही, मेरा परिवार केरल से आता है, और मेरी दादी और नानी एक 1913 में और एक 1914 में पैदा हुई थी, और दोनों, क्योंकि हम लोग हमारी मातृभाषा तमिल है, तो तमिल और मलयालम दोनों जानती थी। बाद में घर में दोनों ने अलग अलग, उन्होंने तो हमारे माता पिता का विवाह कराया, अपने अपने जगहों पर रहते थे, लेकिन दोनों ने अंग्रेजी भी सीखी खुद ही, स्कूल गए बगैर। और नानी जो नागपुर में रहने आ गई, तो साथ में मराठी और हिंदी भी सीखी उन्होंने। तो उसका जो लाभ है, उसका लाभ उनके बच्चों को, और नानी और दादी के बच्चे मिलाकर के 14 थे, बड़े परिवार होते थे। नानी आगे थी, 10 बच्चे थे उनके तो और हम लोगों की संख्या शायद 30-35 हो गई, क्योंकि 14 बच्चों के, तो हम सबको उसका लाभ मिला। तो महिला शिक्षा के बारे में या बालिका शिक्षा के बारे में आपने जो बात कही, वह मैं समझता हूँ कि बहुत ही सही है। और यहाँ पर क्योंकि, और आपने कहा कि लड़के और लड़कियाँ बराबर हैं, मुझे तो लड़कियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं आपके लिए ऑडियंस में लेकिन लड़के नाराज़ न हो, दोनों को साथ साथ बढ़ना है। लेकिन इस बात को, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इस किताब में बहुत सारी और बातों पर भी ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है, मेरा एक दो मुद्दे जो बहुत ही विशेष हैं। एक जो आपने ऑलरेडी टच किया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द की फॉर अ डेवलप्ड एंड प्रॉस्परस सोसाइटी। द अदर पॉइंट विच कम्स इन अगेन एंड अगेन, और हिंदी में भी उसको कह सकता हूँ मैं, विकेंद्रीकरण की बात की आपने, सत्ता के विकेंद्रीकरण, बट साथ साथ में सत्ता के अलावा कार्यक्रम क्रियान्वयन के विकेंद्रीकरण की आपने बात की है। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न रहा है। हमारे जो यंग ऑडियंस यहाँ है वो पंचायतों के बारे में और नगर पालिकाओं के बारे में जानते हैं। इतना बड़ा देश है, जैसा आपने वेद आर्या जी ने कहा कि 140 से ज़्यादा करोड़ लोग हैं। ऐसे में ये जो आपसे प्रश्न मेरा अमरजीत जी ये है, इस पर प्रकाश डालें कि आपने इच्छा तो, इसमें मंशा तो व्यक्त की है कि और प्रभावी विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जिससे कि कार्यक्रम को उस केरल में जो चलेगा वो शायद मध्य प्रदेश में उतना अच्छा साबित ना हो, या वैसे वर्षा। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या क्या कुछ और करने की गुंजाइश बची हुई है एक तरफ। दूसरी तरफ मैं, क्योंकि यहाँ पर यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना है, तो ये कैसे अपने देश में संभव आगे हो सकेगा कि हमारे राजनेता अब विकेंद्रीकरण की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, और उसको और इसके बारे में नीचे से अगर आवाज़ नहीं उठ रही है, तो क्या यह नेतृत्व के लिए यह अपने आप में लाजमी नहीं हो जाता है कि वो आगे बढ़ें और कहें कि नहीं, अब हमें बहुत सारी चीज़ों को नीचे के लेवल पर देने की आवश्यकता है। तो ऐसा माहौल कैसे पैदा किया जाए, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का जो सत्ता है, कम से कम कुछ लाख लोगों के हाथ में तो जानी चाहिए, और कैसे प्रभावी रूप से जाए, और आपका इस क्षेत्र में तजुर्बा भी है। धन्यवाद सर। आप में से सभी जान रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में काम करके समावेशी विकास हम हासिल कर सकते हैं, सबको आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं,
लेबर वेजेस बढ़ा सकते हैं, वैसे विकास के लिए आवश्यक है कि मानव विकास की चाबी समुदाय से बहुत करीब हो। और मानव विकास वो पोषण की बात करें, शिक्षा की करें, स्वास्थ्य की करें, कौशल की करें, आजीविका की करें, ये अपने में इतना ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंटलिज्म से इसके हमें अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। अगर बच्चा कुपोषित है, क्लास में अच्छे शिक्षक जितना नाक रगड़ लें बच्चा सीख नहीं पाता है। अगर हम कुपोषण भी साथ साथ दूर करने की व्यवस्था नहीं करें, इसका मतलब है कि हमें और नीचे के स्तर पे प्रारंभ करना पड़ेगा। हम अगर अपने देश में ही देखें, केरल में तो लोकल गवर्नमेंट और महिलाओं का जो संगठन खड़ा हुआ, कुडुम्बश्री का, सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का, दोनों एक प्रकार से पूरक हैं एक दूसरे के। कुडुम्बश्री की महिलाएं जो समुदाय के संगठन को आगे लाती हैं और इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि जिन्हें निर्वाचित सदस्य हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वहाँ पे हैं, एक प्रकार से ये अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क के रूप में केरल में आगे आया है, जहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि पर नजर रखने के लिए महिलाओं का संगठन है। बगल के तमिलनाडु में हम जाते हैं, वहां भी पाते हैं पंचायत तो कमजोर है लेकिन महिलाओं का संगठन मजबूत है, सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का। महिलाओं का जब संगठन मजबूत हुआ तब उन्होंने सरकारों से ये आग्रह किया कि लड़कियों को आगे बढ़ाना हो या गरीब परिवारों को आगे बढ़ाना है तो गांव के स्तर पे तमिलनाडु में एक व्यवस्था कायम की गई, विलेज पॉवर्टी रिडक्शन कमिटी। गांव के ही लोग हैं उस कमिटी में, तो विकेंद्रीकरण वहां भी है। उसका स्वरूप लोकल गवर्नमेंट का नहीं है, स्थानीय लोगों के जुड़ाव से बना है। लेकिन आज के दिन में एक अच्छी बात है, दो पॉजिटिव डेवलपमेंट जो हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूं। 2004 में बिहार में जो मैट्रिक सेकेंडरी की परीक्षा होती है, 66 लड़के होते थे, 34 लड़कियां होती थी 10वीं की परीक्षा लिखने में प्रतिशत, 66-34। आज बिहार में भी लगभग बराबर हैं, 49-51, 50-50। जो दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु और केरल में पहले हुआ, 2010 से 15 की अवधि में आप देखेंगे, उड़ीसा हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, लड़के और लड़कियों की सेकेंडरी एजुकेशन में पहुंच लगभग बराबर हुई है। ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसका परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत के राज्यों में बहुआयामी गरीबी में कमी आई, विकेंद्रीकरण को ताकत मिला। दूसरा डेवलपमेंट जो उतना ही महत्वपूर्ण है कि ये जो संगठन है महिलाओं का, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण आजीविका मिशन का, आपके राज्य में मध्य प्रदेश में भी है, हमारे राज्य में बिहार के हर गांव में जीविका की बहनें हैं। और जो चीज सही नहीं होता है, अगर मान लीजिए पीडीएस की दुकान ठीक नहीं चल रही है, गांव वाले से पूछे क्या करना है, उत्तर आएगा जीविका के दीदी को दे दीजिए, वो ठीक कर देगी। यह विश्वास कि महिलाओं का संगठन ठीक कर सकता है, दक्षिण के राज्यों से सीख करके ही हम लोगों ने कोशिश किया 2011 के बाद से लगातार वही व्यवस्थाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं की पूरे देश में फैलाने की। आज ग्रामीण आजीविका मिशन में जहां 2014 तक 2.5 करोड़ महिलाएं थी, आज 10 करोड़ महिलाएं। तो ये एक संगठन महिलाओं का हर राज्य में, चाहे असम हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, तथाकथित जो पीछे पड़ गए हैं, इसी कारण से आज हमें विकेंद्रीकरण को आगे ले जाने में, आज जैसे पहले ये शिकायत होती थी, पंचायत के लीडर जो बने, बोलेरो गाड़ी खरीद ली है, बहुत सारी चीजें खरीद ली क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था, थोड़ी सी आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी थी। लेकिन जब महिलाओं का संगठन आ जाता है या कहीं पे प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव मजबूत हो जाता है, तो पंचायतों से वो सवाल पूछते हैं, आप सही काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भी एक नियंत्रण, एक अंकुश, सामाजिक अंकुश, ये अकाउंटेबिलिटी के फ्रेमवर्क से,
तो सर आपके प्रश्न के उत्तर में बताना चाहूंगा, विकेंद्रीकरण के लिए आज जो व्यवस्था उपलब्ध है बालिकाओं के शिक्षा के आगे आने से पूरे देश में, कि हम एक अकाउंटेबल लोकल गवर्नमेंट को संचालित करने में, पारदर्शी लोकल गवर्नमेंट को संचालित करने में, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी है। पंचायतों की अकाउंट्स आपको याद होगा 4 साल 5 साल पुराना पेंडिंग होता था। आज के दिन पंचायतों की व्यवस्थाएं वो भी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पे हैं। टेक्नोलॉजी के उपयोग से भी इट इज पॉसिबल टू हैव अपडेटेड अकाउंट्स ऑफ ऑल पंचायत्स रियल टाइम एट अ क्लिक ऑफ अ बटन। तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। तो इन चीजों को जोड़ करके इट इज एन आइडियल टाइम फॉर अस टू डिसेंट्रलाइज। बजट में जो भी पैसे राज्य के या केंद्र के बजट से जाते हैं, 29 सेक्टर्स जो रूरल एरिया के और जो 18 अर्बन के हैं, जितना जल्दी हम वह व्यवस्था ट्रांसफर करेंगे, जितने ज़्यादा प्रोफेशनल्स रूरल एरिया में देंगे। लाइवलीहुड मिशन की शक्ति क्या है? हर क्लस्टर के लेवल पे भी 2-2 3-3 लोग हैं, पढ़े लिखे लोग। प्रोफेशनल्स इन रूरल एरियाज लास्ट माइल में मजबूती लाने में उनकी भूमिका बहुत विशेष होती है। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही अच्छी तरह से आपने विषय को समझाया, और ये जो लाइवलीहुड मिशन है उसकी वजह से 10 करोड़ महिलाएं एक संगठित रूप पे सामने आई हैं, एक बेस तैयार हुआ है। तो आपने जो विकेंद्रीकरण की शासकीय प्रणाली या विकेंद्रीकरण का जो सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को लेके जाना वहाँ तक, अब मैं आपसे अगला सवाल जो हमारे बेटियों और बेटों से संबंधित है, आर्थिक विकास का विकेंद्रीकरण का मॉडल। केवल यही नहीं कि बम्बई में फैक्ट्री हो या बेंगलोर में फैक्ट्री हो, हैदराबाद में फैक्ट्री हो, या आपके देश में प्रदेश में केवल इंदौर में फैक्ट्री हो। क्योंकि यदि आप पढ़ लिख जाएंगे तो जॉब कहाँ करेंगे, कहाँ नौकरी मिलेगी आपको, कहाँ नौकरी ढूंढेंगे आप लोग? या तो भोपाल में ढूंढेंगे या अहमदाबाद और बेंगलोर। तो मैं अमरजीत जी से सवाल करना चाहता हूं कि क्या, जैसे आपने कोरिया की बात कही या दूसरे देशों की बात कही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो क्या कोई इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्पर्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, जहां पर जिस तरह से आपने हर क्लस्टर फेडरेशन बनाया, उस तरीके से क्या हर डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्रीज हो सकती हैं, जिससे कि वहां से पढ़ाई करने वाले लड़के लड़कियां वहीं जॉब पा सकें? आज हमारा 22% अनएम्प्लॉयमेंट है देश का, और चाइना का है, चीन का है 13%। हम इस मामले में भी चाइना से आगे हैं। यदि मैं चाइना की लड़कियों से मिलूं, जो मैं 2002 में मिला था, तो वहाँ पर लड़कियों को कोई, मैं आपको एक उदाहरण, चाइना का उदाहरण देके इसको कॉन्ट्रास्ट करना चाहता हूँ। चाइना में मैं ट्रेन में गया रात को, वहाँ पर टीटी कौन थी? लड़की थी, औरत थी। आज किसी भी हमारे ट्रेन में कहीं भी किसी भी प्रदेश में कौन सी आपको महिला टीटी रात को मिल सकती है आपका टिकट चेक करने के लिए? बहुत ही रेयर होगा तो होगा। तो ये मैं 22 साल पहले की बात बता रहा हूँ, वी आर इन 2024, मैं 2002 की बात बता रहा हूँ। तो क्या इस तरह का कोई इकोनॉमिक मॉडल आप बता सकते हैं? साथ में जैसे ही सवाल आप जवाब दें, ये सवाल आप लोग फिर हमसे कर सकते हैं, उसके बाद आपके लिए खुला है। नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात को रखा है इन्होंने। एक तो महिलाओं से संबंधित और दूसरा एंटरप्राइज से संबंधित। ये आवश्यक नहीं है कि हम नौकरी ही करें। एंटरप्राइजेज और कई उदाहरण हैं जो वेद जी खुद उससे एसोसिएटेड रहे हैं। आपने गांव में शरीफा देखा होगा, सीताफल। सीताफल के बीज को अगर मशीन से निकाल दिया जाए तो उसका उपयोग बहुत चीज़ों में होता है, आइसक्रीम बनाने में भी होता है। तो वेद जी के एक ग्रुप ने वही काम को किया और आज अच्छे पैसे कमा रहा है। झारखंड में इमली बहुत होता है,
तमिलनाडु केरल में खाने में इमली का प्रयोग बहुत होता है, वहाँ भी डी सीडिंग की ज़रूरत थी। मुरहू में महिलाओं का संगठन है, आज यही काम करके बहुत चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहा है। कई जगह अभी मिलेट्स को प्रमोट करने की बात हो रही है, मोटा अनाज को फिर से श्री अन्न के रूप में प्रमोट कर, तो कई ऐसी संभावनाएं हैं एग्रीकल्चर में ही, नॉन फार्म में भी। तो निश्चित रूप से एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट की आवश्यकता है, इस पर जोर है, लेकिन और जोर देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, क्योंकि जो दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु और केरल, आंध्रा और कर्नाटक में आप देखेंगे, आखिर ये कौन से, मेरी किताब में जो बाहर उपलब्ध है 6 बिंदुओं को हम लोगों ने हाईलाइट किया है। दक्षिण के राज्यों में 6 चीजें साथ साथ हुई हैं। सबसे पहले तो एडोलेसेंट गर्ल्स इन सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, बालिकाओं का माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भागीदारी। जब ये होता है तो स्वाभाविक रूप से देयर इज अ डिक्लाइन इन फर्टिलिटी, प्रजनन दर में कमी आती है किसी भी समाज में, किसी भी राज्य में, जब एडोलेसेंट गर्ल्स सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में पहुंचते हैं। तीसरा, जब बालिकाएं खुद से समूह बना करके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या सेकेंडरी स्कूल्स या हायर सेकेंडरी स्कूल्स जाती हैं, तो एक नई आइडेंटिटी आती है, न तो किसी की बेटी, न तो किसी की बहन, न तो किसी की पत्नी, अ वुमन अनटू हर ओन। चौथा, जब ग्रुप में जाती हैं तो समूह बनने शुरू होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट grew out of these adolescent girls going to schools in Tamil Nadu and Kerala and other states. पांचवा, जब 10वीं तक पढ़ी होती हैं तो वोकेशनल और स्किल की व्यवस्था संभव है। और छठा, महिलाओं के संगठन को, सेल्फ ग्रुप्स को, डॉक्टर सी रंगराजन, द गवर्नर ऑफ आरबीआई, 30 साल पहले 10 लाख रुपए तक बिना किसी मॉर्टगेज या कोलैटरल के लोन उन्होंने अप्रूव किया था कि महिलाओं के संगठन को 10 लाख तक, जो अब बढ़ के 20 लाख हो गया। ये 6 फैक्टर्स दे लोअर इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन सदर्न स्टेट्स, और इसी मॉडल को पूरे देश में हम लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ऐसा होने पे एंटरप्राइज भी निश्चित रूप से और तेज गति से आगे बढ़ता है। दोनों ही राज्यों में, केरल में रूरल और अर्बन कंटिन्यूअम बोलते हैं, आधारभूत काम पता नहीं चलेगा कि गांव में है कि शहर में। तमिलनाडु में डिस्पर्स्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हर जिले में ऐसे कई लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो टेक्सटाइल्स का हो, लेदर इंडस्ट्री का हो, कई और इंडस्ट्रीज का हो, जिसको लेकर के एक डिस्पर्स्ड पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी। थैंक यू। इनफैक्ट आपने बहुत विस्तार से इस बात को समझाया, और मैं समझता हूं कि अब तक बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। समय हमारे पास कमी है, इसलिए और क्योंकि अगला सत्र भी चालू होना है, तो कुछ प्रश्नों को मैं कहूँगा जिनका उत्तर आपको सिन्हा साहब देंगे। कोई, हाँ बोलिए, पीछे से आप बोलिए, सबसे अपना नाम और परिचय देते हुए बोलिएगा। जी सर, मैं बिहार से हूँ और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। सर मेरा प्रश्न था, जैसे कि आप बिहार से रिलेट कर सकते हैं कि आजीवन जो जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें महिला का प्रतिनिधि रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम के अनुसार ही महिला को, जैसे मुखिया, पंचायती राज में मुखिया बनती है महिला, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी प्रतिनिधि करते हैं उसके पति ही करते हैं, पुरुष ही करते हैं। तो ये आखिरी मील तक कैसे जाएंगे कि एक जो संगठन है उसको हम के प्रतिनिधि में आगे बढ़ाएं? देखिए, आपके मध्य प्रदेश में 1996-97 से, मुझे याद है 95 बैच का मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर था, 1995 बैच का, जो प्रोबेशनर से मध्य प्रदेश पे आके पंचायती राज पे एक फिल्म बनाई थी उन्होंने। उसमें हर जगह वो कुर्सी दिखी थी सरपंच पति की, लेकिन आज मध्य प्रदेश में भी सरपंच पति की कुर्सी बहुत जगह से खिसक चुकी है। वो खिसकता है, समय के साथ खिसकेगा अगर जगह आप देते जाएंगे तब। बिहार में भी वो व्यवस्था बदलते जा रही है। कई जगहों पे जीविका की बहन अगर पंचायत में निर्वाचित होती है, उसको बगल में पति को बिठाने की जरूरत नहीं होती।
सही बात, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हम लोग जो मध्य प्रदेश में काम करते रहे हैं, पिछले 30 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जब मैं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का सचिव था उस समय 95-96 में जो पहला दौर देखा और आज के दौर में बहुत अंतर है और महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं। वही शायद बिहार में और अन्य स्थानों पे भी पीछे पीछे वहाँ भी हो जाएगा ऐसा। और हाँ कुछ, हाँ आप पहले पूछ लीजिए। हाँ गो है। The topmost parameter that is highlighted is the birth of the first child, which is as soon as the woman becomes a mother, she is not able to participate equally in the workforce. So what is it that the bureaucrats today and what is it that the legislation today can do to make them go till the last mile, because that is where their participation stops? Thank you for your question. I think, yes, physiologically and otherwise also, there are some additional challenges which women face in being able to continuously work, grow, and professionally achieve the potential that many of them have. While some steps have been taken, but they are definitely not adequate. Lot of thrust like the women's working hostels, support, but we are very weak on, say, creches. Urban areas, perhaps we may have been better, but there are some pockets where we have major challenges. So the emergence of daycare centers or creches, even in rural areas, is important for increasing the labor force participation of women, which clearly is one of our biggest challenges. As many economists have been saying, and her research establishes, it can add up to 2 to 3% GDP quite easily, even in terms of your growth annually. If that is the case, we will have to pursue a more gender-sensitive support system, which ensures that every woman also gets an opportunity to develop their fullest human potential. I think we are completely out of time, but with the Sir, permission of the youngsters here, we'll allow one question from a senior, just one. Thank you, sir. Sir, it's about the health of the women. As we know that cervical cancer is the only cancer of which a vaccine is available. It's a Nobel Prize winning invention. So I would like to know that as WHO has fixed the target year of 2027, previously it was 23, now extended, but our country has not yet started the cervical vaccination mandatorily, and which is very much necessary to protect women from probable cancer, because women are exposed to cancer above all. Not women are prone to cancer more likely. Thank you. Thank you for raising the issue. Public policy is always a matter of choice. And as far as the HPV virus vaccination is concerned, the papilloma virus for the challenge that you are just mentioning, for till some time ago the jury was out. There were alternative models using acetic acid, for example, in the case of Tamil Nadu. They had done screening for cancer of cervix using acetic acid, and which had worked well. But I think in government circles now, it's almost at that level of a decision. By now, the prices have also come down. So clearly, in public policy, especially when it comes to vaccines, there are choices which have to be made. Which vaccine gives more coverage at lower price? But having said that, surely once the jury has taken a call that this is good for women's health, we ought to be going for it. Thank you. Thank you so much, sir, for such an informative and insightful session. क्योंकि मैं खुद एक गर्ल्स स्कूल से पास आउट हूँ, सो आज आपकी बात सुन के मुझे अपनी स्कूल डायरी में लिखा हुआ एक कोट याद आ गया. If you educate a man, you educate an individual, but if you educate a woman, you educate a family.
सो जितनी सरलता से आपने हम तक अपनी बात पहुंचाई है उसकी मैं सराहना करती हूँ. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई लाइक टू इनवाइट राघव चंद्रा जी for the formal unveiling of the book The Last Mile in Bhopal Literature Festival 2024. ये बुक हिंदी में यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिलीज हो रही है. I would request the audience to settle down for a moment, please. I would request the audience to please settle down for a minute. Please settle down.